हेलो एवरीवन, कैसे हो। लास्ट टर्म तक हम लोग सीख रहे थे कि whenever a charge capacitor or two charge capacitor are connected in this fashion, that positive terminal of one capacitor is connected to the negative terminal of another capacitor, and negative terminal of another capacitor is connected to the positive terminal of capacitor, or simply when two capacitor which are charged by different potential, then there is a loss of energy will take place. And second thing, we already have discussed that charges are transferred from a capacitor which has higher potential difference to that of capacitor of lower one. In this process, no doubt charge due to movement of charge, energy loss of energy take place in the form of heat or electromagnetic wave. So we will discuss the actual equation, how do we calculate the loss of energy if this process is take place. And second thing, we'll discuss by taking one illustration on this topic. First of all, last day we already have discussed two main thing. One is common potential whenever a two capacitor which are charged by different uh, potential difference, are two different capacitor charged by same potential difference. Of course, potential difference across both capacitors should be same. Should be different. Whenever it connected, charges are start moving from one to another. In this process, the charges will transfer or moving till a common potential will not take place. Such common potential we already have calculated. That is the C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. And second thing, we already have calculated the loss of energy. How do we calculate the loss of energy? Just see once again here. Initially we have energy of both capacitor separately when charged, uh, that is half C1 V1 square plus half C2 V2 square. And final potential is that. Now next, minus final potential, this is U initial and this is U final. Final potential energy would be half C means C1 plus C2 into V square which one? This is the common potential when both are connected. So this is C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 square, or we can write in this fashion also, C1 plus C2 square. C1 plus C2 square will cancel and we will get half C1 V1 square plus half C2 V2 square minus half. This become C1 V1 plus C2 V2 square upon C1 plus C2. On further solving it, just take the LCM of C1 C2, we will get like that. Half of course will be common, half into this one, C1 V1 square into C1 plus C2 plus half will already common, C2 V2 C1 plus C2 minus C1 V1 plus C2 V2 स्क्वायर. मैंने अपॉन टोटल में जो बचा है वो एलसीएम कितना है, C1 plus C2. We just took the LCM of this equation and now multiply these terms of C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस हाफ को कॉमन ही रहने देते हैं, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर.
C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, इसको भी अगर ओपन कर दें यहाँ लिखते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म पे ओपन होगा और माइनस साइन ऑपरेट करते चलते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस पूरे में ऑपरेट हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस अगेन ऑपरेट सबके हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस फिर से माइनस ही होगा माइनस 2C1 V1 into C2 V2. Now some term will be cancelled due to sign difference. C1 V1 square, C1 V1 square, C2 V2 square, C2 V2 square. Now we have the loss of energy. यहाँ लिखते हैं, इसके बाद देखें लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ लिखता हूँ। तो एक्चुअली लास्ट डे बड़ा हो रहा था क्लास तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, अभी डेरिवेशन देख लें इसका। हालांकि डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हाफ यहाँ से देखें क्या क्या बचा है। बचा ये है लॉस ऑफ एनर्जी, दिस इज हाफ कॉमन था और हमारे पास बचा है कि C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये बचा C1 C2 सब में है हाफ अपॉन C1 प्लस C2, सब देखिए अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 C2 कॉमन अगर करते हैं हमारे पास बचता V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, इट कैन बी राइट V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 minus V2 का स्क्वायर. This is loss of energy. Doesn't matter if V2 potential is greater, then we will write V2 minus V1 square. If V1 potential is greater, then we will write V1 minus V2, because initially we took that potential of first capacitor is greater than potential of another second capacitor. So V1 is greater than V2. In such case this will come. If V2 is greater than V1, then we will get here V2 minus V1 का whole square. Just take one case. Suppose one capacitor is charged by a certain potential difference and other capacitor is discharged. In such case V2 is 0. अगर दूसरा डिस्चार्ज है तो V2 0 रहेगा, तब क्या आएगा इक्वेशन जरा सा देखेंगे। यहाँ रख करते हैं, if a capacitor is discharged, if a capacitor is discharged, अगर एक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है and it connected to a charge capacitor and it connected to a charge capacitor, एक चार्ज कैपेसिटर से उसको कनेक्ट करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर V2 इक्वल टू मान लेते हैं 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, देन लॉस ऑफ एनर्जी हाफ C1 C2 इंटू V स्क्वायर या V1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C, हाफ ऐसे लिख दें तो ये इक्वेशन होएगा। तो इसमें दो चीज़ें आपको जानना है, एक तो कॉमन पोटेंशियल और दूसरा लॉस ऑफ एनर्जी। इस पर एक इलस्ट्रेशन करते हैं, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेरेड का, उसको 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया
और बैटरी से डिस्कनेक्ट करके एक दूसरा कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का है जो कि चार्ज नहीं है, उससे जोड़ देते हैं, तो कितनी एनर्जी का लॉस होगा पहले कैपेसिटर से, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसको मैं रफ करके क्वेश्चन नोट करता हूँ, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। A capacitor of capacitance 4 microfarad is charged by 200 volt supply, DC सप्लाई हमेशा ध्यान रखेंगे, एंड देन डिसकनेक्टेड। एक बार चार्ज किया जा रहा है, फिर उसको क्या कर देते हैं, डिसकनेक्ट कर देते हैं। एक कैपेसिटर, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 microfarad is charged by 200 volt supply. And then disconnected. After disconnecting, it connected to another 2 microfarad capacitor which is uncharged, जो कि चार्ज नहीं है। Calculate the loss of energy due to this process. Calculate the loss of energy of capacitor 1. पहला कैपेसिटर ने जितना एनर्जी लॉस किया उसको कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहे हैं। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन वहाँ से नोट करेंगे सब लोग। अब सोचो कि ये क्या प्रोसेस है, एक प्रोसेस जरा सा समझेंगे प्रोसेस को। एक कैपेसिटर था 4 माइक्रो फैरेड का, इसको 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया, फिर इसको डिस्कनेक्ट किया गया यहाँ से, और डिस्कनेक्ट करके अब जब जैसे ही कनेक्ट करेंगे ये चार्ज हो जाए, जो 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है वो चार्ज हो गया। अब इसको कनेक्ट कर दिए एक अनचार्ज कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया। अब कनेक्ट करने से क्या हो रहा है, वो ये रहा है कि यहाँ से चार्ज इस पर जाएंगे। अब कब तक जाएंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा। पूछ रहे थे ये प्रोसेस में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ इस पहले कैपेसिटर से। अब सोचिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का ये है कि पहले हम जब उसको बैटरी से सप्लाई किए, जब वो चार्ज हुआ होगा तो उसकी कुछ एनर्जी हुई होगी, वो एनर्जी पहले कैलकुलेट कर लें। कैसे, क्योंकि कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा, हाफ CV²। ये इनिशियली उस कैपेसिटर का क्या थी, एनर्जी थी। अब जबकि इससे जोड़ा गया तो जोड़ने पर कब तक चार्ज ट्रांसफर होंगे, जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाएगा। फिर से हम एनर्जी निकाल लेंगे और फिर उसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, जो लॉस हुई एनर्जी उस पर आ जाएगा। तो देखिए अप्रोच क्या है कि सबसे पहले जब चार्ज किया गया उसकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इनिशियल एनर्जी, U इनिशियल, यहीं से लिखना शुरू करते हैं। U इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C1V² या V1² मान लेते हैं, ये V1 मान लेते हैं। हाफ C की वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। 4 माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करेंगे,
इंटू वी स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर। आगे हमारे पास कितना 8 और 10 टू द पावर 4 यहाँ आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 4 यानी 8 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। इतनी एनर्जी इनिशियली जब इस कैपेसिटर को पहले कैपेसिटर को चार्ज किया गया तब इसमें हुई। अभी जब इसको ये पहला प्रोसेस था, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी इसकी हुई, इतनी हो गई है ना। अभी क्या है कि जब इसको इसके साथ कनेक्ट किया गया तो यहाँ से अभी चार्ज ट्रांसफर होंगे ऐसे करंट के फॉर्मेट में। यहाँ पे चार्ज आएगा, इसका चार्ज कम होगा और जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तब जाके रुकेगा। तो सबसे पहले हम कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। फर्दर कहेंगे कि ऑन कनेक्टिंग विद 2 माइक्रोफेरेड कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेते हैं। V इक्वल टू, याद करो इक्वेशन, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज है C1V1 प्लस C2V2। C1V1 प्लस C2V2। टोटल कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2। देखिए केस आ गया कि अगर एक दूसरा क्या होगा अनचार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। तो लिखेंगे क्या C1 कितना है, C1 है 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 और V1 था 200 प्लस C2 क्या था 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू V2 क्या था 0 था अपॉन C1 इंटू C2 यानी 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 दोनों का कैपेसिटेंस। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/6 10 टू दी पावर -6 और यहाँ पर 200 भी है, 200 ऐसे लिख लेते हैं अपॉन 10 टू दी पावर -6। ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 400/3 ये वोल्ट हो गया। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल एनर्जी कितनी, फाइनल एनर्जी ये दोनों की जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी। अभी कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, 400/3 आ गया। तो क्योंकि इसी का पूछा है तो इसी की फाइनल एनर्जी निकाल लेते हैं हाफ CV² से और जो आएगा उसमें से घटा देंगे। ये पूछा है कि पहले कैपेसिटर की कितनी एनर्जी लॉस हुई, तो पहले कैपेसिटर की एनर्जी लॉस के लिए हम यही कर देते हैं, इसमें से इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम लिखेंगे कि देखो कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 1। तो अभी देखेंगे फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी। नाउ फाइनल एनर्जी, अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 400/3 और कैपेसिटेंस कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -6। तो देखिए लिखते हैं हो जाएगा कितना हाफ CV यानी C1 और V यानी कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। हाफ C1 कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V1, V कॉमन कितना है 400/3 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 जा 32/3, 3 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 4 यानी 32/9 इंटू 10 टू द पावर -2 और 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 आसपास आएगा और फिर 4 4 आता है इंटू 10 टू द पावर -2। ये फाइनल एनर्जी होगी। इनिशियल एनर्जी इतनी थी, फाइनल एनर्जी वो। लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
So for loss of energy, loss of energy कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस 3.4 इंटू 10 टू द पावर -2, 6 और 7 में से 3 जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल. So in this way we can calculate the loss of energy during the charging and discharging process. इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करना रहता है. अच्छा, कई बार आपको यहाँ पे क्या था, एक दूसरा जो कैपेसिटर दिया था वो डिस्चार्ज था या अनचार्ज था. कई बार ये होगा कि जो दूसरा कैपेसिटर दिया रहेगा वो भी चार्ज होगा, और उसमें अगर लॉस ऑफ एनर्जी पूछता है तो वो इक्वेशन लगा देंगे, C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2 C1 C2 का इक्वेशन लगा के डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे. बट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. यहाँ पर क्या पूछा था कि ऐसा करने पे पहला कैपेसिटर का एनर्जी कितना लॉस होता है. तो इन सच वे वी डू नॉट कैलकुलेट द टोटल एनर्जी आफ्टर द कॉम्बिनेशन, बिकॉज we just have to calculate the energy of only one capacitor to which question is asked. Don't try to solve the combine or system of these two capacitor energy. It will be wrong. So do one thing, read the question carefully and then try to approach to solve. इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं. इसमें से आपको बेसिकली लॉस के ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 1-2 बार बोर्ड में भी आए थे. अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमने कहा था कि अभी कैपेसिटर को हम सिंपली पढ़ते जा रहे थे. हमने कहा कि नेक्स्ट कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के 2 मेथड हमने बताए थे. एक क्या बताया था कि अगर उसके डायमेंशन या ज्योमेट्री को चेंज करते हैं या बढ़ाते हैं, बिकॉज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ओनली डिपेंड अपॉन इट्स ज्योमेट्री. एंड सेकेंड थिंग, मीडियम इन बिटवीन द प्लेट. In order to study how capacitance of capacitor is depend upon the medium in between the plate, we are going to study about the capacitor with dielectric. हमको अभी क्या पढ़ना है, कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के साथ कितना कैपेसिटेंस होता है. So in order to study this topic, we just want to study or we just want to discuss something about कि what happen when a dielectric is placed in between plate in the sense in electric field. One thing, a question may be arise, what is dielectric actually? Dielectric क्या है? तो dielectric ना तो कंडक्टर है ना तो इंसुलेटर है, इसके बीच का एक सिस्टम होता है कि ना तो उसमें फुल कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है ना तो वो टोटली इंसुलेटर होता है. While it containing both property, or we can say it moreover it is insulator, but it has got some conductivity also. तो हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों पे. तो पहले हम देखेंगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, क्या इफेक्ट आता है, वो जरा सा देखोगे. ये रफ करेंगे. डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले तो डाइलेक्ट्रिक का क्लासिफिकेशन करता हूँ. 2 तरह से होते हैं, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं. डाइलेक्ट्रिक बेसिकली समझिए इंसुलेटर होता है बट इट हैज गॉट सम कंडक्टिविटी. सो इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर द मटेरियल इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, समथिंग मेटलॉइड लाइक थिंग्स. Dielectrics are 2 types. One is polar dielectric. And second one is non-polar dielectric.
Polar dielectric are those in which center of positive and negative charges are separated by certain distance. Positive center of positive and negative charges are separated. और ये क्या होते हैं? सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एट सेम पॉइंट. यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर सेम पॉइंट पे होते हैं और यहाँ पर वो सेपरेट होते हैं. पोलर में, पोलर इट मीन्स दो चार्ज का सेपरेशन, एक डाइपोल के जैसा केस. और यहाँ पर क्या है कि दोनों के सेंटर एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, जैसे N2 हो गया, H2 हो गया, एक्सेट्रा, वो HCl जैसी चीजें. अब ना इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए. इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट क्या होता है, हम देखते हैं. पहले पोलर का देखते हैं. इनिशियली देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब के केस में देखिए, और फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तब देखेंगे. एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि पोलर है, तो उसके डाइपोल मोमेंट इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि उसमें डाइपोल इंटरेक्शन होते रहते हैं, जिसके वजह से वो एक रैंडम मोशन भी पजेस करते हैं. इस तरह से डाइपोल आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन दिस वे. अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो E=0. नॉर्मली कहीं पर डाइपोल यानी वाटर रखा है तो उसके डाइपोल मोमेंट अलाइन थोड़ी होते हैं, वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे. नेट डाइपोल मोमेंट एज ए बल्क 0 आने वाला. बट एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जैसे ही इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, डाइपोल बिकम अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. अब जैसे ही इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अपोजिट टू द फील्ड एक्सपीरियंस करेगा. तो उनमें एक अलाइनमेंट आ जाएगा. कैसे हो जाएगा जरा सा देखना. ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ E ऑन अप्लाइंग E अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, यानी E0 ना रख के E नॉन जीरो कर दिए, एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिए, E डज नॉट जीरो, उस केस में ये डाइपोल क्या होंगे, अलाइन होंगे. कैसे? इस तरह से इनका अलाइनमेंट होने लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस तरह से इनका अलाइनमेंट होगा. देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, हम मानते हैं E0 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करके इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द फील्ड आएगा. हेंस it has got a certain alignment in the direction of electric field in influence of electric field. Now if dielectric is non-polar, अगर डाइलेक्ट्रिक पोलर नहीं है, डाइलेक्ट्रिक इज नॉन पोलर, उस केस में हमने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जो होंगे वो एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, दिस वे.
external electric field. Again, in this fashion, the charges will get aligned in the direction of electric field. Positive charge will experience in the direction of electric field, negative charge in opposite direction of electric field. Hence, it has got some separation like that. अगर इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा दिए तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पॉजिटिव यहाँ गया, निगेटिव यहाँ, इट मीन्स इट हैज गॉट सम सेपरेशन. It means positive and negative charge become separated by certain distance. Hence we can call it become polarized. ये फिर से पोलराइज हो गया. यहाँ पर E does not equal to 0 है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में लगाई, इसके वजह से ये प्रोसेस हो गया. दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन. इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं. अब इस पोलराइजेशन में एक पोलराइजेशन की जो डेंसिटी होगी वो किस बातों पर डिपेंड करेगी. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा. अब हम कहेंगे on applying electric field in non-polar dielectric it become polarized. The phenomena is called polarization. On applied external electric field, electric field on non-polar dielectric, it become polarized. ये पोलराइज हो जाता है. Polarizing density is directly proportional to the applied electric field. Phenomena को polarization बोलते हैं, called polarization. Phenomena को ही polarization. Called polarization. ये जो पोलराइजिंग डेंसिटी है, इट मीन्स हाउ मच मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बिकम पोलर इज डिपेंड अपॉन द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच पोलराइजेशन डेंसिटी it means P is directly is proportionate to applied electric field. applied electric field कितना है, E नॉट है, यानी P is directly proportional to E नॉट और P is equal to chi E. This is chi, Chinese word CHI, chi, called electrical susceptibility. Electrical susceptibility. और चाहते हैं तो डिफाइन भी कर सकते हैं. काई इक्वल टू P अपॉन E, यानी पोलराइजेशन डेंसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड काई ऑफ दैट मीडियम. पोलराइजिंग intensity per unit volume, density, polarizing density per unit electric field is electrical susceptibility.
इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होती है, मतलब किसी डाइलेक्ट्रिक में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जितना उसमें पोलराइजेशन डेंसिटी होता है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होता है उस मीडियम का। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट मीन्स हाउ मच एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्टेड टू ए मटेरियल इज कॉल्ड इट्स ससेप्टिबिलिटी। तो हमने क्या देखा कि जब डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है। अब पोलराइज होने से क्या फिनोमिना हो रहा है, जरा सा ध्यान दोगे कि जब हम इसको पोलराइज कर दिए, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए होंगे तो हमारे पास सपोज ये दो प्लेट लिए थे, इस पर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इस पर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी रहा होगा, या ये सब भी अगर नहीं लिखते हम कल क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया E0 इस डायरेक्शन में, और ये देख रहे हैं सारे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये सारे छोटे मॉलिक्यूल भी अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। E0 किधर है, ऐसे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये इस डायरेक्शन में होगा, E इंड्यूस। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट आएगा वो E आएगा, E नेट जो आएगा बेसिकली E इक्वल टू E0 माइनस E इंड्यूस्ड। और वो किस डायरेक्शन में आएगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा। तो सीधे सीधे हम देख क्या पा रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जा रहा है। वो जितने अमाउंट में रिड्यूस होता है उसको उस मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ तक सब लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इस पे कैपेसिटर पे अप्लाई करके देखेंगे किस तरह से होता है। इसको एक बार डिस्कस लिख लेना इसी तरह से और रिवाइज कर जाना। बोर्ड में क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, डेफिनेशन के टर्न पर 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक सब लोग पढ़ेंगे और फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके बचे हुए पोर्शन को कवर करके उसमें करेंगे। और फिर अगर पर्शियरी फील्ड होता है तब क्या होगा, फुल्ली फील्ड होगा तब क्या होगा, और एनर्जी पर क्या इफेक्ट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट आएगा, कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट आएगा, ये सारा कुछ डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।